अरुण जेटली మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం. शायद अगर मैं करेक्ट हूं तो सिंगल डिजिट में थे परसेंटेज में, मतलब 10% से भी कम हाई डिनोमिनेशनल थे सर। आज हाई डिनोमिनेशनल नोट्स 86% थे और इसलिए इस 86% का ब्लैक मनी में, करप्शन में, काउंटरफीट करेंसी में, टेररिज्म में, इन सब में इसका कहीं ना कहीं रोल रहता है और इसलिए इसका प्रभाव बहुत अधिक होने वाला है। जहां तक कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी का आपने जिक्र कहा, वो एक बात स्पष्ट समझ लें कि किसी भी व्यक्ति को, विशेष रूप से सामान्य छोटे व्यक्ति को, इससे कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। किसान भी अगर अपना पैसा बैंक में रखता है या पोटली में बांध के घर पे रखता है तो दोनों परिस्थितियों में उसको कोई टैक्स नहीं लगता। बैंक में रखता है तो ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी सुरक्षित रहेगा और इसलिए ये तीनों लाभ किसान को मिलेंगे। टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी सुरक्षित रहेगा। घर में अगर असुरक्षित किसी कपड़े में बांध के रखता है तो ये सब तकलीफ आएगी उसको। तो इसलिए ऐसा बयान देने से पहले एक बार गंभीरता से वो सोच लें। Sir, Sapna from CNBC TV 18. So you spoke about no inconvenience for the small person, for the common man. So basically, just wanted to understand that even on cash deposits, like in terms of exchanging the notes, say up to between 2 to 3 lakhs, as much as that, if the taxpayers is not part of the tax net, is in the IT exemption bracket. So there is nothing to worry about, sir. There will be no queries from the taxman on that. मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक वाक्य में इतना कह दूं कि जितने मौजूदा कानून है, विशेष रूप से इनकम टैक्स एक्ट, वो बिल्कुल स्पष्ट है किस पे टैक्स लायबिलिटी आती है और किस पे नहीं आती। वो टैक्स कानून में लिखा है और इसलिए जो एग्जेम्प्टेड है वो एग्जेम्प्टेड है और जो टैक्स वायलेशन में है वो वायलेशन में है। ये तो टैक्स के कानून के तहत उसको डील किया जाएगा। उसका इस एक्टिविटी से रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करेगा वो अलग एक्सरसाइज है। Sir, Timsi this side from CNBC. Another question, sir. When you are promoting use of plastic money, there are current ceilings under the tax notifications that any expenses made annually above 2 lakhs through credit card, you are under the tax scrutiny. Similarly, there are other brackets as well. So are you planning to relax those also? Because when you ask people to spend more through plastic money, obviously honest taxpayer also comes under scrutiny. If you spend through check or credit card, then irrespective of whether the tax authorities know or don't know, it is your safe. That's all accounted money. आप अगर क्रेडिट कार्ड से खर्चते हैं या चेक के माध्यम से खर्चते हैं तो आपको किसी प्रकार के डर की कोई गुंजाइश नहीं है। Meghna Mittal from IANS. My question is that from tomorrow onwards the currency replacement will start, but by when do you think the complete replacement in the market will be possible? देखिए, अब आप इसको स्पष्ट समझ लीजिए कि जो बाजार में करेंसी है वो कितनी रिप्लेसमेंट के लिए आएगी, ये एक प्रश्न है। हमारे यहां जो आकलन है कि आरंभ के कुछ दिनों में थोड़ी इनकन्वीनियंस हो सकती है क्योंकि सर्कुलेट करके उसको बैंक्स में रिप्लेस किया जा रहा है, उसके लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 2-3 सप्ताह में बिल्कुल पर्याप्त करेंसी हर बैंक और पोस्ट ऑफिस में होगी जो लोग रिप्लेस करना चाहते हैं उसके लिए। Last but one. Sir, Ashutosh from BTVI, it is evidently clear that all the suspicious deposits, whatever suspicious deposits are there, will be referred to the income tax department. Now, what will be the basis of that referral to the income tax department? I won't get into it. There is a clear income tax law. This is not an immunity scheme. This is not an immunity scheme. This is a scheme under which one set of currency has ceased to be a legally valid tender
and is being replaced. And therefore, those who have lawful monies with them have nothing to fear. Those who have unlawful monies then certainly will be liable as far as the tax law is concerned. So what would be the cost of introducing a new currency? Mr. Chidambaram has given an Well, I estimate of think 15 to 20,000 crores. I just want to say two things. It's a highly exaggerated figure which has been mentioned. After all, it's when once the entire currency is printed, the cost would be known as far as the finance ministry and the central bank are concerned. अच्छा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप इसे बंद नहीं कर रहे हैं, आप रिप्लेस कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ये ब्लैक मनी को बाद में भी बढ़ावा देगा? आने वाले 5 साल में अंदर 2000 का नोट आएगा या 500 के जो नोट आएंगे, और दोबारा से उसके लेकर के कोई स्टेप आपको लेना पड़ेगा? और दूसरा खासतौर पे कि ये कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, अगर आप बंद करते हो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का टैक्स पेयर पे जो है बोझ कितना पड़ेगा? देखिए, आप एक चीज स्पष्ट देखिए कि अगर 15-16 साल पहले 1000 रुपए का नोट आया था, तो इन्फ्लेशन के आधार पर आपको कितनी उसकी वैल्यू बनती है। रिजर्व बैंक का जो आरंभिक प्रपोजल था वो ये था कि 5000 और 10,000 रुपए का नोट भी शुरू किया जाए। सरकार ने उस सुझाव को नहीं माना था और बाद में ये 2000 रुपए का नोट शुरू हो, क्योंकि रुपए की जो कीमत है, ताकि उसकी लॉजिस्टिकल पैसे को साथ डील करने की भी जो कन्वीनियंसेस है उसमें आए, और इसलिए एक बार ये सारा पैसा टैक्स नेट के अंदर अगर आता है तो किसी भी स्वाभाविक व्यक्ति के लिए क्या इंसेंटिव होगा कि उसको टैक्स नेट में लाना, उस पे टैक्स देना और उसके बाद उसको दोबारा ब्लैक मनी कन्वर्ट कर देना। सर, ये इतना सरल नहीं है आरंभ में। सर, मैं शिशिर चौरसिया हूं, अमर उजाला से। कल सर आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि कल बैंकों में हो सकता है अफरा तफरी हो, इसके लिए अतिरिक्त काउंटर खुलेंगे और अतिरिक्त समय होगा, कार्य समय। तो जानना चाहूंगा कि सर कितने काउंटर अतिरिक्त होंगे और कार्य समय अतिरिक्त क्या होगा? कितने काउंटर अतिरिक्त होंगे जरूरत के मुताबिक। बैंकों की व्यवस्था बहुत बड़ी है और इतनी सारी हमारी 1,25,000 ब्रांचेस हम काउंट करते हैं रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में और भी हैं, तो जिस तरह से ज़रूरत होगी उस तरह से व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जगह जगह जाकर अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने का और उसमें से पैसा निकालने की दोनों सुविधा जो है वो मुहैया करवा रहे हैं। और बाकी आपने बात की कि एक्सटेंडेड टाइमिंग्स का, ये देखते हैं, अभी इसके ऊपर फाइनल फैसला कोई नहीं हुआ है, तो जैसे ज़रूरत होगी सुविधा अनुसार कस्टमर्स के उसको साथ के साथ करते जाएंगे। 170 Sir, this is Suchetna from Hindustan Times. Many experts believe that hoarding of cash from now on will become difficult because high denomination currency like 2,000 rupees will come with a GPS tracking system. There will be a chip. But do you think maybe 3 years from now this could lead to gold smuggling or maybe keeping of gold bars? देखिए, ये चिप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम। दूसरा ये जो आपने कहा कि अगर आप हाई डिनोमिनेशनल करेंसी को रिप्लेस करने की बात करोगे तो लोग एकदम सोना खरीदना शुरू कर देंगे, तो सोना खरीदने के लिए भी जो पैसा दिखाएंगे तो जो बेचने वाला होगा उसको भी तो कहीं वो कैश फिर दिखलाना पड़ेगा। ये सारी चेन अब समस्या में पड़ेगी। दिस होल चेन विल रन इनटू डिफिकल्टी। और दूसरा, जीएसटी के ट्रैकिंग सिस्टम के बाद किसी ना किसी स्टेज पे तो ये ट्रैक होगा कि कितना सोना देश के अंदर आया, किसने बेचा, किसने उसका ऑर्नामेंट बनाया, किस कस्टमर ने खरीदा, और अल्टीमेटली जिस किसी के पास कैश फाइनली गया, कहीं ना कहीं उसको भी तो यह कैश डिस्क्लोज करना पड़ेगा। రైట్, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు సమాంతరంగా నడుస్తోన్న
నల్లధనం వ్యవస్థను నిర్మూలించేందుకే 500,000 రూపాయల నోట్ల రద్దు నిర్ణయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుందని, ఎవరు ఇప్పటికీ న్యాయబద్ధంగా డబ్బు తమ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు, దానికి అకౌంటబిలిటీ చూపిస్తే సరిపోతుందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా రైతులు బ్యాంకుల్లో పెట్టుకుంటే వడ్డీ వస్తుంది, పైగా సురక్షితంగా ఉంటుంది, ట్యాక్స్ కూడా కట్టక్కర్లేదు కాబట్టి ఎవరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి చెప్తున్నారు.